After very long time interval, we are here again with CBSE sample paper of subject Physics Theory portion for class 12 session 23-24. So welcome to all. We will see the pattern of questions in upcoming session like 23-24. Then we will solve one by one each questions of the sample paper. Okay. So let's see how many questions and how what type of question will be there. So first 33 questions will be there in the paper and all questions are compulsory. Okay. Question paper will contain 5 sections: section A, B, C, and D, and lastly E. Okay, 5 sections will be there, and different types of marks will be there allotted in each section. Like section A will carry 16 questions, and in 16 questions, 12 MCQ will be there, and 4 assertion reasoning, and each 16 questions individually carry 1 marks. Means total 16 marks you will get from section A. Now come to the section B. Section B will carry 5 questions and each questions give you 2 marks. Means 10 marks you will uh, score from the section B, and from section C you will get 7 questions and each question will be give you 3 marks. Okay. Come to the section D. Section D says it will contain 2 case study based question, and each case study based question will carry 4 questions, and each question will carry 1 marks. Means 2 case study based questions will be give you 8 marks totally. Okay, 4 for each. Now the last question section is section E, and E section will give you 3 long questions, and each question will give you 5 marks. Okay, so this is the pattern for 23-24 section session. Now come to the question number 1. We will see similarly the each questions one by one. So first question is see first question, this one. The question is saying an electric dipole having dipole moment 4 into 10 raised to the power minus 9 coulomb meter is placed in uniform electric field such that dipole is in stable equilibrium. मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है. सी दिस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आर नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू प्लेस अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन विच लाइक पैटर्न, इक्विलिब्रियम पैटर्न. लाइक उसको हम ऐसा रखें कि वो किस केस में रहे, स्टेबल में. तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाइपोल को अगर हम इस तरीके से रखते हैं जिसमें माइनस इधर है और प्लस इधर है, तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके. और फिर उसके बाद इसको रोटेट कराना है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी आपको दिया है, मतलब कैपिटल ई की वैल्यू दे रखी है आपको. एंड व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल टू अ पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. मीन्स इस फर्स्ट केस स्टेबल वाले से घुमा करके इसको अनस्टेबल में करना, और अनस्टेबल हमें पता है कि इधर प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस. तो सेकेंड केस में लाना है आपको, फर्स्ट से रोटेट करा करके आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा. आप इसको रोटेट करो और आप कितना वर्क करोगे उनमें से इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है. क्लियर है? सो लेट्स डू. पहले आप फॉर्मूला की बात करो तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का W इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट cos theta 1 minus cos theta 2, and this is the theta that is known as angle between electric dipole and electric field. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात अगर हम करें, इसी में देख लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा. हम देखिए पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा हो गई माइनस से प्लस पी. ओके. दूसरे वाले केस में हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा माइनस से प्लस पी इस दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों केस में किधर है, लेफ्ट टू राइट ही है. तो पहले केस में आप देखोगे जो ये आपका है पी, वो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के है, तो ये थीटा बना दिया कितना, 1 0 डिग्री. बट इन अदर केस, सेकेंड जो केस हमारा बन रहा है इन अनस्टेबल का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रहा है, बट ये जो डायपोल की दिशा माइनस टू प्लस वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में. तो यहाँ एंगल सेकंड केस में क्या बन जाएगा, 180 डिग्री. मीन्स थीटा 2 is 180 and theta 1 is 0 degree. Put the values and solve the question to get the answer. So see P into E cos theta 1. Cos theta 1 means 0 degree minus cos theta 2 means 180 डिग्री. तो cos 180 की वैल्यू -1, तो ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस.
और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 और 1 अंदर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2, बाहर का p हो जाएगा और e हो जाएगा, तो मतलब टोटल वर्क डन आ गया 2pe। अब 2p में से p आपको दिया है क्वेश्चन में, e भी दिया है, आप वैल्यू रखो, सॉल्व करो। तो आप यहाँ देखो मैं कर दे रहा हूँ ऊपर, W इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू रखा है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखा है इन्होंने 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12, ओके। 12 होने के बाद, अच्छा 2 छूट गया हम लोगों से, सी 2 इज ऑल्सो देयर ना, तो 2 को लास्ट में लिख देते हैं, हम लोग। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, 12 नहीं आएगा, अब ये आ जाएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, ओके, इंटू 10 रेज टू द पावर -3, यहाँ प्लस है, यहाँ -9 है, इट विल कम -6। अब हम अगर इसको 2.4 लिखना चाहें, 2.4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन और मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से, तो ये हो जाता -5, ओके। जूल, यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल, तो ये आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁵ जूल, एंड द आंसर इज सी, okay. So this is the first question. We will see the second question in next video. So thank you for being here.